next level, before which you will do a few sums. Alright, let's see. Now, I am not doing anything from your spiral bind today because that's already done in the previous class. I want to do different. This is concise. Okay. Bas, enough. Okay, so let's take this. Okay, guys, relax. Okay, we have A, B, C, D are in proportion. Prove that 5A minus 4B, 5A minus 4B upon 5A plus 4B is equal to 5C minus 5D upon 5C plus 5D. ये प्रूव करना है, ठीक है? First step, always in componendo dividendo. This can also be solved by K method or not? A can be written as BK, can be solved by K method. But if the teacher has twisted brains, na, like me, she will tell you do it by componendo dividendo. Do it by K method. करना ही पड़ेगा उन मेथड से. So K method, componendo dividendo method से देखते हैं. We know that A upon B is equal to C upon D. Which number is associated with A and C? Let's see. कुछ association हमेशा रहेगा. 5. And which number is associated with B and D? Denominators? 4. Sorry, ये 4 है, हाँ? 4. So if can I multiply both the proportion values with 5 upon 4? Yes. दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हो कि नहीं? A और C के साथ 5 एसोसिएटेड है, देख A और C पे 5 है और 4 B और D डिनोमिनेटर्स पे लगा है, तो 5 by 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता है कि नहीं? So can I say 5A upon 4B will also be equal to 5C upon 4D? Yes. Dividendo से करना पड़ेगा. हो गया कि नहीं? Now what I need addition subtraction values or not? Do I need addition subtraction values? So can I? What is my addition subtraction? दोनों चाहिए तो component और dividend तो सीधा लगाएंगे. पहले component dividend में फिर inverted. Correct, you are right. So applying component or dividend. What do we get? This plus this upon this plus this upon this minus this is equal to this plus this upon this minus this, isn't it? This can be elephant, this can be your head, this can be anything. Okay, so 5A plus 4B upon 5A minus 4B is equal to 5C, very good, plus 4D upon 5C minus 4D. हो गया कि नहीं? But this is not your answer. What do you need? वैसे बताओ वो साइन का समझा नहीं मेरे को. अरे ऊपर प्लस साइन होता है, नीचे माइनस साइन होता है, क्या नहीं समझा? इनवर्ट. ओके, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में हमेशा A plus B upon A minus B. बस A ये है ना, A plus B upon A minus B. क्या नहीं समझा? But do I need this? No. What do I need? I need minus sign ऊपर. तो रेसिप्रोकल करना है कि नहीं? So what do I have to apply now? Apply invertendo. मैंने तो ब्रैकेट में लिखा. हाँ चलेगा. Allow. इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं? 5A minus 4B upon 5A plus 4B is equal to 5C minus 4D upon 5C plus 4D. Got it? चलो एक इसका इन्वर्स प्रॉब्लम है. मैम अगर हम लोग 5A क्या लेंगे? क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है. वही तो प्रूव कर तुझे, तो प्रूव दैट करना है, वही तो क्या प्रूव करना है तुझे बता. हाँ बोल. अगर हम लोग 5A plus 4B equal to 5C plus 4D को पहले इन्वर्ट करके बना देंगे क्या? Now I am showing you the inverse problem. देख लो सब लोग, पेन बंद. किसी को नहीं आने वाला ये. थर्ड क्वेश्चन है. हाँ, like मेरे लिए सेकंड. चलो, I am solving this. तो मालूम है? मैम इनको टाइम डेट क्या रखना है? किसका? वर्कशीट अपलोड करना है. Periodic table. इन लोगों का पीरियोडिक टेबल आपको इन लोगों का ना, हाँ मुझे थर्सडे चाहिए. Okay, now let's see this problem. Now this is an
अरे इसके लादर लगी ये कान में देखो इनवर्स प्रॉब्लम है ये 8a दिस इज गिवन दैट ओके कैन यू कीप क्वाइट 8a minus 5 ये भी देखो इनवर्स प्रॉब्लम है ये अपॉन 8c minus 5b is equal to this is given बेटा 8a plus 5b upon 8c minus plus 5b prove that very important sum prove that a upon b is equal to c upon d. What is the approach? All the time we have to know a few things. Whenever we are applying a componendo dividendo or whenever we are de-applying componendo dividendo, applying it or removing it. Whenever we do that, हाथ नीचे कर. Whenever we do that, first what do we need? One मतलब कोई भी वैल्यू प्लस दूसरा वैल्यू अपॉन वही सेम वैल्यू माइनस दूसरा सेम वैल्यू. डोंकी प्लस मंकी अपॉन डोंकी माइनस मंकी ही होना चाहिए. डोंकी प्लस मंकी अपॉन ऑरेंज माइनस बनाना नहीं हो सकता है. नेवर. सो हु इज माय डोंकी 8a, हु इज माय मंकी 5b. पहले ऊपर कंपोनेंट डिविडेंड में क्या होता है प्लस या माइनस. कुछ भी करके मुझे ये ऊपर चाहिए कि नहीं जो है, लेकिन ये इसके नीचे चाहिए कि नहीं क्योंकि a b के नीचे c d होना चाहिए कि नहीं. बिकॉज आई वांट टू गेट ऑल लाइक टर्म्स टुगेदर और नॉट. What will be getting like terms together? How amazing would it be if this could be here and this value could be there? Alternate. So what do I have to apply? Alternate. Mean values को switch किया कि नहीं? Yes. Mean values switch हो गए कि नहीं? So when I switch the mean values, what do I get? I get इसको हाँ इसको और इसको switch कर दिया. So what do I get? 8a applying. हम इसके बाद इन्वर्टेंडो भी लगाना पड़ेगा ना. हाँ. देखते हैं लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे. पहले एक एक करके लगाएंगे. माइनस है आईओ वाईओ हाँ देखते हैं क्या होता है. अप्लाई देखते हैं. लेट्स सी पहले इन्वर्टेंडो लगेगा कि नहीं क्योंकि ये सब कुछ ये अनलाइक टर्म्स एक साथ हो गए हैं. हॉचपॉच हो गया है. तो पहले मैं आज सुनो इन्वर्टेंडो में सिर्फ ये मीन टर्म्स एक्सचेंज होते हैं. कुछ भी ये मीन टर्म है क्या? नहीं. ये मीन टर्म है. इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते. मीन टर्म क्या है ये इसको एक्सचेंज करेंगे. सो अप्लाइंग इनवर्ट alternando sorry applying alternando what do I get 8a minus 5b upon 8a plus 5b is equal to ये इधर गया 8c minus 5d upon 8c plus 5d. ये चलेगा क्या? मेरे को कंपोनेंट डिविडेंड फॉर्म में है क्या? मैंने पहले CD यूज किया और उसके बाद ऑल्टरनेटिव लगाया. CD कैसे हुआ बेटा? किसने बोला है तुझे AB? तुझे क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? पढ़ो क्वेश्चन जोर से. This is given. This is to be proven. तो you A upon B is equal to C upon D. C नहीं ले सकते हैं बेटा. Okay, quiet. मेरे को आपको जो लगा वो बिल्कुल गलत है. My bad. This is my given. This is my proving. So have we reached it here? Yes. Is this enough for me to apply component or dividendo? We can. देखो इन्वर्टेंडो नहीं भी लगाया तो भी चलेगा. क्यों? मुझे ये सोचो अभी देखो everyone look at the board. Now do I have some term here and some term here? But are the like terms in top and bottom whatever? A और B साथ में है, C और D साथ में है कि नहीं? इतना साथ में. अभी सुनो. अभी इसको if I consider this as one big A and this I consider as one big B and this I consider as one big C and this I consider as one big D. So can I say A upon B is equal to C upon D or whatever A dash B dash whatever? हाँ ये बोल सकते हैं. इसमें लगा सकती हूँ क्या मैं डायरेक्टली कंपोनेंटो इस बड़े चीज में इसमें कंपोनेंटो लगा के देखे क्या होगा. So what will it be? Everyone eyes on the board. This plus this upon this whole minus this whole is equal to this whole thing plus this whole thing upon this whole thing minus this whole thing. होगा कि नहीं? कितना भी बड़ा टर्म हो. किसी ने बोला है कैसे A पे ही लगा सकते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड. किसी पे भी लगा सकते हैं. What if you multiply both the sides with -1? You are not using any method of ratio or proportion if you multiply both the sides by minus. No need for that. तो इन्वर्टेंडो क्यों नहीं लगा? जरूरत ही नहीं है. अरे लगा दिया तो लगा दो. एक स्टेप बढ़ जाएगा. कुछ इजी नहीं होगा. कुछ इजी नहीं होगा. मैंने इन्वर्टेंडो कुछ चेंज नहीं होगा उससे. अगर इन्वर्टेंडो लगाया नहीं लगाया कुछ चेंज नहीं होगा. मैंने जो बोला वो आप लोगों को समझ में आया क्या? That whatever
Component और dividendo can be applied on that or not? So what will I do here? Please बोर्ड पे देख के फिर सॉल्व करना. एक स्टेप भी मिस हो गया तो मिस हो जाएगा. So can I say here applying component or dividendo, what do I get? 8a minus 5b plus 8a plus 5b बोल सकते हैं? This term plus this term upon this term minus this term. So what is this term? 8a minus 5b minus 8a plus 5b. ये बहुत जरूरी है. माइनस के बीच में साइन चेंज होता है, इसीलिए इसको माइनस इसको प्लस मत छोड़ना. ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज both sides be right together or not? So can I say 8c minus 5d plus 8c plus 5d upon 8c minus 5d minus 8c plus 5d. लग गया कॉम्पोनेंट और डिविडेंड. खोलो ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स खोलोगे तो क्या होगा? 8a minus 5b plus 8a plus 5b minus 5b plus 5b निकट जाएगा कि नहीं? गॉड. ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये दोनों माइनसेस हो जाएंगे. तो ये minus 5b will remain as it is. 8a and minus 8a will get cancelled out or not? Yes. So what will I be left with? 8a plus 8a कितना होता है? 16a upon minus 10b. हो गया इधर तक? समझा? And what will this become? minus 5d plus 5d गया. और ये minus 5d और ये minus 5d रह जाएगा. और 8c और minus 8c गया. चला गया. तो क्या बचा मेरे पास? 8 8 16c upon minus 10d. बोलो आईडी को क्यों नहीं काटता? कैसे कटेगा? माइनस और माइनस, ये माइनस ब्रैकेट पे था, ये माइनस हो जाएगा. तो माइनस माइनस काटेगा कैसे? मिल गया. अभी मुझे एक बात बताओ, माइनस 16 अपॉन 10 इंटू ए अपॉन बी हो गया कि नहीं है? एंड दिस इज ऑल्सो माइनस 16 अपॉन 10 इंटू सी बाई डी हो गया कि नहीं? भगाओ इन लोगों को. मिल गया हम लोगों को a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d. हेंस प्रूव. समझ में आया क्यों जरूरी नहीं है इन्वर्टेंडो कॉम्पोनेंट इसमें? पर इन्वर्टेंडो लगा दिया तो एंजॉय. उसके बाद फिर सीडी लगाना है. सीडी तो लगाना ही पड़ेगा. बिना सीडी का कर सकते हो. नहीं. तो कितना भी बड़ा सम हो क्यों ना हो, सीडी लगा के कैन बी एलिमिनेट एट ऑल स्टेप्स. कैन यू सी हाउ इजी इट इज? समझ में आया? Yes, ma'am. किसी पे भी लग सकता है ना कंप्यूटर. तेरे और तेरे पे भी लग सकता है कि नहीं? किसी पे भी लग सकता है. ए और बी सिर्फ होना जरूरी नहीं है. दिस इज द इनवर्स टाइप ऑफ सम. डिड यू गेट इट? वेरी गुड.